सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर ख्याति। आज मैं आपके लिए लाई हूं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 5, दैट इज ह्यूमन बॉडी। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी and what are the different systems that are present in our body. Okay, let us first see what are our curricular goals. हम लोग इस चैप्टर के एंड में क्या एम कर रहे हैं कवर करने के लिए. डिस्क्राइब द मेजर सिस्टम्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो भी मेजर सिस्टम्स हैं, लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई नो दीज टर्म्स आर न्यू फॉर यू, बट वी विल slowly and gradually learn about them. Understand the basic functions of key organs such as heart, lung, brain and stomach. ये कुछ key organs हैं which are very vital for the survival of a human. इनके functions के बारे में we will be learning. Learn the importance of taking care of the human body and stay healthy. हमें अपनी बॉडी का केयर भी करना चाहिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ. वो भी इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं. व्हाट आर द concepts that we'll be covering in this chapter? The human body, the sense organs, the skeletal system, muscular system, nervous system, digestive system, respiratory system, circular system, excretory system and reproductive system. I know this sounds like a lot of systems in our body, but our body is performing many functions, and now we will see how all these functions are working in the body in detail. Okay, let us start together by reading the chapter and understanding the basics of what we are going to study. Okay, all living things are creations of God, but God has put human beings at the top of the creation. All the living beings are creation of God, but the humans है ना, they are special because they are at the top of the creation. They have a mind to think of. So human beings have a body that can perform many things. A human body is a living machine. It can see, hear, taste and feel. अब जो human body है, it's a living machine. Like the machines we made, God made us. Okay, and we can do various things, various very numerous things that we can do from our body. Like I'm teaching right now, it is also a part of the brain I am given by God. Okay, so let us study about the human body and what is it made of. Our body is it made of many small units called cells. Now if we see at the ground level, what is our body made of? It's made of cells. Okay, I hope you're understanding the concept where we are talking about cells. Cells are the main structural and functional unit of our body. Okay, जो भी function हो रहा है वो पहले कहाँ पर हो रहा है? That will happen in the cell and then it will happen in a mass level. Cells are the building block of the body. Cells are all different type. अब cells हमारे building block भी हैं और cells जो होते हैं वो अलग अलग type के होंगे. While they be of different type because they have a very specific function. Like some cells are there for digestion while other are there in our brain which are called nerve cells. Cells of the same type combine together to make a bigger unit called tissues. Okay, अब बहुत सारे same type के cell, what are they doing? They're combining together and they're making a tissues. Tissues perform special functions and join to form organs. Now what is happening? टिश्यू बना, सेल्स ज्वाइन हुए तो टिश्यू बना एंड दैट टिश्यू इज फॉर द मेकिंग ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अब ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. अब जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में कंबाइन हुए, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर मेकिंग अ ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू मेक अ ऑर्गेनिज्म. नाउ यू अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले व्हाट इज देयर? सबसे पहले there is cell, then cell makes a tissue, then tissue makes a organs and organs together make a organ system and which in turn makes a organism. तो आप समझ रहे how complex a body is. तो इसको हम पहले छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ सके. समझना is the main thing that we have. अब हमारी बॉडी में होते हैं sense organs which help us to feel the change around us. Okay, what are the 5 sense organs in our body? They are eyes, ear, nose, tongue and skin. ये हमारे क्या है? Sense organs. ये हमें help कर रहे हैं feel करने में, to know the changes. These organs help us to see, hear, taste, smell and feel. ये हमें feel करने में, taste करने में, देखने में, सब चीजों में ये organs हमें help कर रहे हैं. Eyes help us to see. हम अपनी eyes से क्या करते हैं? We
see different things. The ear help us to hear. We hear all kinds of sound with our ears. जो हमारे ears हैं वो हमें सुनने में help कर रहे हैं. We hear all sorts of sound with our ears. अब हमारी जो nose है, what is our nose doing? It helps us to smell, identify different smell like sweet or foul. कुछ smells हमें अच्छे लगते हैं naturally और कुछ हमें बुरे लगते हैं. That is the function of our nose. Okay. What is the function of a tongue? Tongues help us to taste. अब कोई भी taste है, sweet है, salty है, it's spicy. What is the function of the tongue? The tongue is helping us identify what is the taste. Okay, let's see what's the terminology here. Identify. Identify का मतलब क्या होता है? To find out or to check. Sensitive. What does sensitive mean? Readily affected by something. कोई चीज जो बहुत जल्दी किसी दूसरी चीज से अफेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव. वी हैव जनरली हर्ड ऑफ द टर्म सेंसिटिव स्किन, यानी स्किन हमारी बहुत जल्दी किसी चीज से अगर रिएक्ट कर रही है, दैट इज व्हेन वी कॉल आवर स्किन सेंसिटिव. एंटायर, एंटायर मीन्स कंप्लीट, यानी पूरा हो जाना. ओके. स्किन गिव्स अस अ सेंस ऑफ टच. अ स्किन इज सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड एंड पेन. हमारी जो स्किन है वो हमें सेंस ऑफ टच प्रोवाइड कर रही है. और हमारी स्किन किससे सेंसिटिव है? हीट, कोल्ड एंड पेन. जैसे इफ दिस गर्ल इज पुटिंग अ हैंड वेरी क्लोज टू अ फायर, व्हाट शील फील? शील फील द वार्मथ ऑन हर हैंड एंड शील पुल हर हैंड अवे. ओके. द ऑर्गन सिस्टम इज मेड ऑफ मेनी ऑर्गन्स. और जो ये सारे ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं? दे वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन. और जो ऑर्गन्स होते हैं दे कैन बी इंटरनल ऑल्सो एंड एक्सटर्नल ऑल्सो. एक्सटर्नल मीन्स जो आपको बाहर से दिख रहा है, इंटरनल आर इनसाइड योर बॉडी. चलिए, सबसे पहले द फर्स्ट सिस्टम विल स्टडी अबाउट इज योर स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये हमारे स्केलेटन या बोन्स का सिस्टम है. ठीक है. बोन्स क्या करती है? हमारी बॉडी को शेप देती हैं, सपोर्ट देती हैं और प्रोटेक्ट करती है जो भी ऑर्गन इसके अंदर है. लाइक आवर लंग्स आर देयर, है ना. रिब केज के अंदर हमारे लंग्स होते हैं, तो लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारा रिब केज. फिर हमारा जो ब्रेन होता है, इट इज प्रेजेंट इन आवर स्कल. तो ऐसे ही दूसरे ऑर्गन्स को भी आपका जो स्केलेटन है, इट्स प्रोटेक्टिंग. इट हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक एंड मूव. हम अगर चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, इट्स विद द हेल्प ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वी हैव मस्कुलर सिस्टम. अब मसल्स जिस सिस्टम में होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर सिस्टम. जहां मसल्स कंबाइन हो रही हैं. और हमारी जो मसल्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में होती है एंड इट हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स टू मूव. अब जो स्केलेटन है उसको मूव कौन करवा रहा है? उसको हमारी मसल्स पावर दे रही हैं मूव करने का. लेट्स सी अ साइंस फैक्ट. द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अ बॉडी इज द फीमर थाई बोन. जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है हमारी थाई बोन, जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन भी होती है. There are more than 600 muscle and 206 bones in our body. हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? There are 600 muscles and कितनी बोन्स हैं? 206. कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं. रिसीव. रिसीव का मतलब क्या हुआ? टू गेट. इंस्ट्रक्ट, टू ऑर्डर. किसी को अगर हम कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, वी आर ऑर्डरिंग देम, सो वी कॉल इट इंस्ट्रक्शन. अब बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो हमें हेल्प करता है डिसीजंस लेने में. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप आवर नर्वस सिस्टम. ये हमारे पार्ट्स हुए नर्वस सिस्टम के. दे कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर एक्शन. नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और हमारी पूरी बॉडी के जो भी एक्शंस होंगे वो भी हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है. ये सिग्नल्स रिसीव भी करता है और सिग्नल्स भेजता भी है दूसरी बॉडी पार्ट्स को. इट्स सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी. ओके. और जो हमारा ब्रेन है वो इंस्ट्रक्ट करता है इस नर्वस सिस्टम को. पहले आएगा हमारी नर्व्स, नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल कॉर्ड टेक्स इट टू द ब्रेन. ओके, आई होप दिस वाज क्लियर. अब आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे. डाइजेस्टिव सिस्टम वही सिस्टम है जो आपको फूड डाइजेस्ट, जो भी आप अच्छा अच्छा खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स कौन निकाल रहा है? दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर पार्ट्स इज कॉल्ड डाइजेशन. अब फूड को जब हम सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड डाइजेशन. ओके. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड
anus, जो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं that a mouth, food pipe, stomach, liver, large intestine, small intestine, these organs are all part of what? They are part of our digestive system. Okay. In stomach, the food mixes with the digestive juices. अब जो हमारा stomach होता है, इसमें हमारा food आता है and it mixes with what? It mixes with digestive juices. Okay. और ये juices क्या करते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं. इसके बाद फूड कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन होता है और यहीं से हमारा फूड जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं और ब्लड के अंदर चले जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स. और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड फिर भी बच गया वो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. और उसके बाद जो फाइनल हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो चले जाते हैं बॉडी के बाहर थ्रू द एनस. ओके. हमने माउथ से फूड लिया, उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट किया एंड जो भी वेस्ट हमारा बच जाता है दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड एंड वेयर इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनस. ओके. आई होप दिस वाज क्लियर. ओके. एक साइंस फैक्ट देखें जल्दी से. क्या है साइंस फैक्ट? द डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो डाइजेशन वाला पार्ट है यानी ब्रेकडाउन वाला पार्ट है वो कहाँ कंप्लीट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन का पार्ट होगा. ओके. द नेक्स्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमने ये तो पढ़ा ही है कि फूड के बाद हमें ब्रीथ करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो लेट अस स्टडी अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? द नोज, विंड पाइप एंड द लंग. ठीक है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है. द प्रोसेस बाय व्हिच वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला ब्रीदिंग. और हम ऑक्सीजन कैसे इनहेल करते हैं? इनहेल थ्रू आवर नोज. और नोज के बाद वो कहाँ जाती है? इट गोज टू द लंग थ्रू व्हाट? थ्रू आवर विंड पाइप. यहाँ नोज है, नोज के थ्रू विंड पाइप में गया एंड विंड पाइप के थ्रू यहाँ चला गया हमारे लंग्स में. फ्रॉम देयर इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ आवर बॉडी. उससे क्या हुआ? उसके बाद जो हमने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर दिया उसके बदले में हमारे नोज से बाहर क्या जा रहा है? दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ब्रीथ फ्रेश एयर. हमेशा फ्रेश एयर ब्रीथ इन करनी चाहिए. इसका मतलब कि एयर जो है हमेशा क्लीन रहे. वी शुड ब्रीथ आवर नोज एंड नॉट आवर माउथ. आपको नोज के थ्रू ब्रीथ करना है, नॉट योर माउथ. ओके. वरना आपके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जा सकते हैं. आपको अपने विंडोज और रूम ओपन ही रखना चाहिए. आपके विंडो का जो रूम का विंडो है वो खुला होना चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज होता रहे. और अब सोते हुए अपने मुंह को आपको कवर नहीं करना है. डू नॉट कवर योर माउथ व्हाइल यू आर स्लीपिंग. ओके. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? जो आपका ब्लड है आपकी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है. इसमें क्या होते हैं? हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स. अब जो आपका ब्लड है वही तो जा रहा है, वो जा किसके थ्रू रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू. एंड व्हाट इज द हार्ट डूइंग? इट एक्ट्स लाइक अ पंप. ये पंप की तरह काम कर रहा है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. और ये क्या करता है? ये पुश करता है ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो छोटी भी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं. ओके. अब एक साइंस फैक्ट देख लेते हैं. इन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट आवर हार्ट बीट्स 103,680 times per day. You're seeing how many times her heart is breathing and it's working continuously because her heart never stops. Okay. Now we have respiratory system. बस दो ही systems बचे हैं तो ध्यान से सुनिए और समझिए. एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये आपकी बॉडी में से वेस्ट निकालने में हेल्प करता है. इट्स पुटिंग आउट द वेस्ट. और इसमें होते कौन से ऑर्गन्स हैं? The kidney, skin and lungs are the organs which are present in the excretory system. और इस प्रोसेस को जिससे हम वेस्ट निकाल रहे हैं what is it called? It's called excretion. The process of taking out waste from the body is called excretion. अब किडनी जो होती है वो क्या करती है? अनवांटेड मटेरियल रिमूव करती है फ्रॉम द ब्लड. आपकी बॉडी में जो भी अनवांटेड मटेरियल है, ब्लड में जो भी अनवांटेड है उसको रिमूव कर देती है आपकी किडनी. ओके. आवर स्किन हेल्प्स टू रिमूव स्वेट फ्रॉम द बॉडी. और आपकी स्किन क्या है? इट्स हेल्पिंग टू रिमूव द स्वेट.
कोई भी जो टॉक्सिन्स हैं वो स्किन के थ्रू, स्वेट के थ्रू निकल जाते हैं. ओके, so the last topic of this chapter is reproductive system. Reproductive system कौन सा है? जो हमें हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में. It body helps us. What is our body doing? Our body helps us produce new young ones. हमें नए young ones produce करने में कौन हेल्प करता है? हमारा reproductive system. And we produce young ones like us through reproductive system. जो young ones होते हैं किसी भी organism के, वो उसके जैसे ही होते हैं. Okay. What are the key takeaways of this chapter? हमें इस chapter के end में क्या क्या पता चल जाएगा, पता चल गया है. एक्चुअली आप लोगों ने क्या क्या समझ लिया है, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं. ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल. वो स्मॉल यूनिट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज विच कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स. सेल्स आपके टिश्यूज फॉर्म करते हैं और टिश्यूज आपके फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स. Skeletal system consists of bones which give shape to our body. आपका जो skeletal system है उसमें होती है bones, और bones क्या करती है? शेप देती है हमारी बॉडी को. Muscular system helps our body parts to move. Muscular system, what is it doing? It helps the body to move. And muscular system में क्या होते हैं? The muscles are present. Nervous system controls the body part and their action. Nervous system is doing what? It's controlling the nerves and what actions our body is doing. Digestive system helps to break down the food into simple forms. अब digestive system क्या कर रहा है? It's breaking down the food into simpler substances which are easy for the body to digest. Okay. Respiratory system. Respiratory system is helping the body in breathing. Breathe करने में respiratory system आपकी मदद करता है. Excretory system helps to remove waste from the body. अब excretory system what is it doing? It helps to remove the waste. जो भी waste material है body का वो remove हो जाएगा with the help of excretory system. Okay, with this we come to the end of this chapter. Now I'll see you all in the next chapter. Until then, you have to keep learning, you have to keep revising, because we have covered a very good portion of your syllabus. Okay, I'll meet you in the next video. Until then, take very good care of yourself and keep learning and keep growing, kids. Thank you.